আপনাদের সাথে থাকুন সর্বদা। আপনাদের মঙ্গল হোক, পরম ঈশ্বরের করুণা লাভ হোক আপনাদের প্রত্যেকের। অডিটোরিয়ামের ভেতরে যেহেতু আমরা রয়েছি, আগুন নিয়ে আপনারা সাবধানে তাপ নেবেন, খেয়াল রাখবেন। যেহেতু আমরা অডিটোরিয়ামের ভেতরে রয়েছি, প্রদীপের শিখার তাপ আপনারা নিন, কিন্তু সাবধানে আপনি নিন এবং অপরকে সুযোগ করে দিন।
मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। শান্তির জল আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। মহারাজজি শান্তির জল প্রদান করছেন, সকল ভক্তের কাছে শান্তির জল পৌঁছে যাবে। আমরা মহারাজজির কৃপা থেকে কেউ বঞ্চিত হব না, প্রত্যেকের জন্য শান্তির জল তিনি দেবেন। আপনারা জায়গা থাকুন, আপনারা অযথা অডিটোরিয়ামের সামনে চলে আসবেন না, স্টেজের সামনে চলে আসবেন না। আপনাদের প্রত্যেককে আমরা বারংবার যেটা বলছি, মহারাজজি আপনাদের কাছেই চলে যাবেন, ভগবান স্বয়ং আপনাদের কাছে যাচ্ছেন, কারণ আজকে ভক্তের টানে ভগবানের আসার দিন, তাই ভগবান স্বয়ং আপনাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন। এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য। আজ বাসুদেব শ্রী শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের জন্মদিন, আমাদের মহারাজজির পূর্ণ জন্মদিন। স্বয়ং ভগবান আপনাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন। আপনারা নিজ নিজ জায়গায় থাকুন। রবীন্দ্র ভবনে আমাদের জন্মাষ্টমীর মহোৎসবের এই পূর্ণ লগ্ন, যেখানে মহারাজজি সবাইকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, শান্তির জল সবার কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন, মহারাজজি স্বয়ং আপনাদের মাঝে রয়েছেন। তাই এই পুণ্যক্ষণ, এই পূর্ণ লগ্নে আপনাদের প্রত্যেককে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ হোক, সবার মঙ্গল কামনা করি আমরা সাধন সংঘ আশ্রমের পক্ষ থেকে। गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल সৎসঙ্গ, বিচার, সন্তোষ, শান্তি, মুক্তির এই চারটি ধারা, এদের সাথে সঙ্গ করলে তবেই মুক্তির দ্বার। আত্মজ্ঞান মানুষকে জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি দেয়। সংসারের সবচেয়ে বড় ব্যাধি হলো জন্ম ও মৃত্যু। ধর্মহীনা পশুভি সমানা। সংসার মিথ্যা ও বিষতুল্য, ওটাকে বোধ করাই সত্যের সন্ধান করা। ঈশ্বরে বিলীন হবার জন্য আজকে আমরা এখানে এসেছি, সমস্ত কিছু দিয়ে তাকে পাওয়ার জন্য। যে আকুতি ছিল ব্রজের গোপীদের, সুদামার, সেই আকুতিতেই সবরীর কাছে চলে গেছিলেন রামচন্দ্র। নারায়ণ রূপী দেবতা ভক্তের মাঝে বিরাজ করেন সর্বদা। ঈশ্বর প্রাপ্তির সেই শুভক্ষণ আমাদের সবার জীবনে প্রতিটা সময় আসবে, মহারাজকে সামনে রেখেই। প্রাতরাসের ব্যবস্থা রয়েছে, দয়া করে অডিটোরিয়ামের বাইরে গিয়ে প্রাতরাস গ্রহণ করে আপনারা ফিরে আসবেন 15 মিনিটের মধ্যেই। পূজার্চনা হলো, ভক্তিগীতি এবং অনুষ্ঠান চলবে। আমরা শুরু করছি আমাদের অনুষ্ঠান, সৎসঙ্গ এবং আজকের জন্মাষ্টমীর মহোৎসব। विमुख शिखर से धारा धाये राधा हरि सम्मुख लाए बांसुरिया हरि सावरिया की राधा गौरी सुनवाले बाजे मुरलिया बाजे रे
बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे धर धरे मोहन मुरली पर धर धरे मोहन मुरली पर होठ पे माया विराजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे हरे हरे बास की बने मुरलिया हरे हरे बास की बने मुरलिया मरम मरम को छुए अंगुरिया मरम मरम को छुए अंगुरिया चंचल चतुर अंगुरिया जिस पर चंचल चतुर अंगुरिया जिस पर कनक मुंदरिया साजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे पीली
चावल बेल की पतिया शिव जी के माथे धरो रे। चंदन चावल बेल की पतिया शिव जी के माथे धरो रे। भोलानाथ दिगंबर ए दुख मेरा हरो रे। भोलानाथ दिगंबर ए दुख मेरा हरो रे। ए दुख मेरा हरो। अगर चंदन का भस्म चढ़ाऊते, अगर चंदन का भस्म चढ़ाऊते शिव जी के पैया परो रे। शिव जी के पैया परो रे। नंदी जो पर शारे भैरावा, नंदी जो पर शारे भैरावा मस्तक गंगा धरो रे। भोलानाथ दिगंबर ये दुख मेरा हरो रे। भोलानाथ दिगंबर दुख मेरा हरो रे। ये दुख मेरा हरो। शंकर जी को तीन नेत्र है। शंकर जी को तीन नेत्र है। अद्भुत रूप धरो रे। अर्धांगी गौरी पुत्र गजानन मस्तक गंगा धरो रे। भोलानाथ दिगंबर ये दुख मेरा हरो रे। भोलानाथ दिगंबर ये दुख मेरा हरो रे। ये दुख मेरा हरो। समाधि धरो रे। शांति समाधि धरो रे। कंचन थाली कपूरे की बाटी, कंचन थाली कपूरे की बाटी शिव जी की आरती करो रे। भोलानाथ दिगंबर ये दुख मेरा हरो रे। भोलानाथ दिगंबर दुख मेरा हरो रे। ये दुख मेरा हरो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरणों में चित धरो रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरणों में चित्र धरो रे। भोलानाथ दिगंबर दुख मेरा हरो रे। भोलानाथ दिगंबर ये दुख मेरा हरो रे। ये दुख मेरा हरो रे। ये दुख मेरा हरो। जो तुम तो रो पिया मैं नाही तोरू, जो तुम तो रो
पिया मैं नाही तोरू तोष प्रीत तोर कृष्णा कौन संग जोरू तोष प्रीत तोर कृष्णा कौन संग जोरू जो तुम तोरो पिया मैं नहीं तोरू जो तुम तोरो पिया मैं नहीं तोरू तुम भय करो बड़ा मैं तेरी पंखिया तुम भय सरोवर मैं तेरी मछिया तुम भय गिरी बड़ा मैं भय जारा तुम भय चंद्रा मैं भय चकोरा जो तुम तोरो पिया मैं नाही तोरू जो तुम तोरो पिया मैं नाही तोरू तुम भय मोती प्रभु हम भय धागा तुम भय मोती प्रभु हम भय धागा तुम भय सोना हम भय सुहागा मेरा कहे प्रभु मेरा कहे प्रभु ब्रज के पाशी मेरा कहे प्रभु ब्रज के पाशी तुम मेरे ठाकुर मैं तेरे दासी जो तुम तोरो पिया मैं नहीं तोरू जो तुम तोरो पिया मैं नहीं तोरू অনন্যা মুখার্জি। प्रभु मोरे आव गुण चेतना धरो ना धरो प्रभु मोरे आव गुण चेतना धरो ना धरो प्रभु मोरे आव गुण चेतना धरो ना धरो समदर्शी है समदर्शी है नाम तिहारो चाहो तो पार करो चाहो तो पार करो ना धरो प्रभु मोरे आव गुण चेतना धरो
बाधिक पड़ो, एक घर बाधिक पड़ो। सो तू विधाता रस नहीं मानत, सो तू विधाता रस नहीं मानत, कंचन करत करो ना धरो। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, ना धरो। ये है माया भ्रम जाल कहावत, ये है माया 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 भ्रम जाल, ये है माया भ्रम जाल कहावत। सूरदास सागर, सूरदास सागर। अब की बेर महापार उतारो, अब की बेर महापार उतारो, नहीं प्राण जात डरो ना धरो। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, ना धरो, ना धरो, ना धरो। सखी रे मैं, सखी रे मैं, गिरधर के रंग राजी। सखी रे मैं, गिरधर के रंग पछ रंग मेरा चोली रंग दे, पछ रंग मेरा चोली रंग दे। जुरमुट खेलन जाती मैं, जुरमुट खेलन जाती मैं, गिरधर के रंग राजी। सखी रे मैं, गिरधर के रंग राजी। जुरमुट में मेरा सही मिलेगा, जुरमुट में मेरा सही मिलेगा।
রূপনাথ দত্ত। পূর্ণময়ী মাতাজি আমাদের মধ্যে এসছেন আজকের এই জন্মাষ্টমীর মহোৎসব। মাতাজিকে একবার মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাবো। মাতাজি এসছেন আমাদের মধ্যে আজকের এই পূর্ণ জন্মতিথি, মহারাজজির শুভ জন্মদিন, মহা সন্ধিক্ষণ। আমি বলে দিচ্ছি ওকে। এইটা মাইক্রোফোনটা একটু ডাউন করে দিন। এই মাইক্রোফোনটা একটু ডাউন করে দিন, অল্প ডাউন করুন মাইক্রোফোনটা। মাতাজি আসন গ্রহণ করুন। রূপনাথ একটু উঠে দাঁড়াও ভাই। মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলিত হচ্ছে। মহারাজজি, মাতাজি এবং সকল ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে অখণ্ড মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলিত করছেন মহারাজজি এবং পূর্ণময়ী মাতাজি। শঙ্খটা বাজাবেন, উলুধ্বনি দিন। শঙ্খটা বাজাবেন, উলুধ্বনি দিন। প্রজ্বলিত হলো মঙ্গল প্রদীপ। আমি মাতাজিকে অনুরোধ করব তার অমৃত বাণী প্রদান করবার জন্য। পূর্ণময়ী মাতাজি এসছেন, তিনি পুষ্পার্ঘ নিবেদন করছেন এবং ওনার বক্তব্য আমরা শুনবো এবং রূপনাথ রয়েছে আমাদের মধ্যে। গুরু বন্দনা করছেন মাতাজি। মহারাজজির আজকে জন্মদিন। আমি মাতাজিকে অনুরোধ করছি মাতাজির বক্তব্য প্রদান করার জন্য। देव नुतुषाहार धवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावर्दण्ड मंडित करा या श्वेत पद्मासिना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदितां सा मां पातुं सरस्वती भगवती निश्यस्य जाड्यापहं शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा माध्यम जगद्व्यापनीं वीणा पुस्तक धारणीम अभयदम जड्यांधकारं पहम हस्ते स्फटिकमालिकं चौधति पद्मासने संस्थितं वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्. Today is the very auspicious day of our Sadguru incarnation and Lord Krishna incarnation. Our Sadguru teaches us the power of self-realization. What is self-realization? Self-realization is that path of human life in which we realize the truth of life, that is the Atma Swarup. What is Atma Swarup? We are saying we are not body, not mind, not intellect. Who I am. That is the knowledge of self-realization only. The Atma Swarup is the most powerful bliss in nature. It tastes like nectar. And it is the consciousness in every being. And that power feels because of only of Atma Shakti. If we are alive, that is only of Atma Shakti. Our body is alive, our mind is alive, we are working, that is only of Atma Shakti. If that power will go from our body, it doesn't exist.
It doesn't have any power. So, Paramatmik Shakti, Guruji is saying us to attain your Paramatmik Shakti, gain our Paramatmik Shakti that resides in us only, in our body only. So, what to do? How to gain that Shakti? Atmik Shakti? Guruji is telling us, make your mind stable and steady. That is very much turbulent, very much unsteady. So, that is the main focus we have to do, the focus in the mid of the eyebrows. To gain that Atmik Shakti, or for that, we have to make our mind stable. And why don't our mind get stable? Because of lot of worries, lot of misery, lots of negative thoughts is running in our mind. And one more thing that I want to say, that Guruji is saying us, today is Lord Krishna incarnation. Lord Krishna incarnation is based on the pure bhakti and devotion. What is the pure bhakti? Pure bhakti means keeping deep faith on God in every situation, in good or bad, and surrendering fully yourself into the God's lotus feet. So definitely one can gain salvation, that is the mukti, free from the ocean of birth and death. That is the ultimate goal of human life. And it can be only gained by Guruji's kripa. So Guru कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम. यही हम लोग सब प्रार्थना करते हैं गुरु जी से, जो सभी को मुक्ति दान, शांति दान, आनंद का दान हो सबके अंदर, सबके हृदय में, और उसी से सबके अंदर वो चेतना जागृत हो जो यहाँ आने का मकसद है. ये धर्म सभा जो आयोजित होती है, प्रत्येक वर्ष होती है, और इसीलिए सब भक्त यहाँ पे आते हैं, उपस्थित होते हैं. भक्ति, साधना, ध्यान, आपका मन का शांति और निर्भय जीवन, जो हमारे को सबसे ज़्यादा लगते हैं, जो सबका मन में भय बहुत ज़्यादा रहता है, हर चीज़ के लिए भय, परिस्थितियाँ, आगे आने वाली परिस्थितियों के लिए डर. तो ये जो चीज़ है, ये एकमात्र परमात्मा का ध्यान करने से ही कट सकता है, क्योंकि उससे आपको मन में विश्वास जगता है और जितने आपके नेगेटिव विचार है वो कट जाते हैं. तो इसीलिए जिसके मन में, हृदय में ईश्वर का भक्ति है, उसको कभी भी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए. ये विश्वास जिसके पास है, भक्त और भगवान की घटनाएं तो गुरुजी ने हम लोग को, सभी भक्त सुन रहे हैं. आज तो भगवान श्री कृष्ण का ये है, तो हमने यही सोचते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का जितना भी भक्त हुआ, भगवान के ऊपर सबसे परम भक्त में जो नाम आ रहे हैं, पहला नाम अर्जुन को बोलते हैं. जो गीता का ज्ञान दिया तो अर्जुन को दिया, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को यही बोला. अर्जुन पूछ रहा है, प्रभु मेरे मन में इतना संशय हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? तो भगवान ने वही रास्ता, आत्मज्ञान का रास्ता, वही ब्रह्म विद्या का रास्ता ही बताया. और अर्जुन को बोला, तस्मात् योगी भाव अर्जुन, हे अर्जुन तू योगी बन जा. माने हमेशा उनसे युक्त रहने को बोला. कहीं भी भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं बोला कि उनसे युक्त नहीं रहना है. भगवान बोल रहे, मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, तो मेरा भक्त बन जा, मुझे नमस्कार करो. तो भगवान ने कहाँ बोला कि हमको, कि तुम उनसे हमेशा बोल रहे जुड़ने के लिए. वी हैव टू कनेक्ट आवर सेल्फ टू द गॉड ओनली. हमारा कनेक्शन हो रहा है, जैसे आप सब गुरुजी के पास आए, दैट इज़ द कनेक्शन. यही तो कनेक्शन है, गुरुजी के पास आना, फिर उनकी बातों को फॉलो अप करना. जो गुरुजी बोल रहे हैं उसको आप अक्षर अक्षर जो फॉलो अप करता है, तो डेफिनेटली उसको निर्भय जीवन और ब्रह्म स्थिति है, उसको लाभ हो सकता है एकमात्र सद्गुरु का कृपा से ही. तो यही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो हमने एग्जाम्पल बोलना चाहते हैं, फुली सरेंडर, शुद्ध भक्ति और विदाउट एनी संशय. जो हमारे मन में द्वंद्व और संशय आता है, वो भी तो मेरी कमजोरी है. इसीलिए अपनी कमजोरियों को देखिएगा
और उसी से आपको जीवन में शांति और अपनी कमजोरी देखने में हम जो मानते हैं इसमें कोई दोष नहीं है या कोई कमी नहीं आती है, उसको फाइंड आउट करके हम अगर अपने को ठीक कर ले तो वो ज़्यादा बेटर है। तब हम ज़्यादा ऊपर का तरफ उठ सकते हैं, परमात्मिक ज्ञान की तरफ। लेकिन मैं अपना दोष ना देख के सबका दोष देख रहे तो वो चीज़ उसको आगे नहीं बढ़ने देती और ना जीवन में शांति लाती है। इसीलिए कोशिश होना चाहिए दूसरा का फॉल्ट नहीं देखें। ये बेस्ट नेचर है टू कीप योर ह्यूमन लाइफ हैप्पी, नॉट टू सी अदर फॉल्ट्स। तो आप लोग बाकी आप लोग को भक्ति श्रद्धा उसी के ऊपर गुरुजी बोलते हैं सब कुछ निर्भर है। और ये हमारा भी जीवन का अटल विश्वास है कि गुरु भक्ति ही सबसे ज़्यादा इंसान को मजबूत बनाती है, निर्भरशील स्वनिर्भरशील बनाती है। ये जिसका अंदर है और उनका स्वरूप को जो देख दिया, गुरु इष्ट एक है, अलग नहीं है। ये विश्वास जिसका पास है, अनुभूति भी साथ में चाहिए। डेफिनेटली आपको अनुभव भी चाहिए, एक्सपीरियंस कीजिए उस परमानंद को जो आपके अंदर है, हम सबके अंदर है। आप लोग देखिए संसारिक आनंद लेके कितना सब लोग खुश रहते हैं, वर्ल्डली प्लेजर्स। एक बार आत्मिक आनंद लीजिए, जो ले रहे हैं उनको पता भी होगा उससे ऊपर और कुछ नहीं है। यही हमारा बोलना है, यही प्रार्थना है गुरु जी का चरण में, सबका मंगल के लिए, सबका अंदर शुद्ध भक्ति, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध परमात्मा के लिए भावना और जीवन में अच्छा कर्म करने की शक्ति परमात्मा सबको दे। यही बोल के हम अपना वक्तव्य को शेष करते हैं। ओम पुण्यमद पुण्यमिदं पुण्णात् पुण्यमुदच्यते पुण्यस्य पुण्यमादाय पुण्यमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये कैसेट है, इसको अभी उद्घाटन, हाँ लीजा दिशा, ये कथकली प्रेजेंट्स उत्सर्ग भजन माल्या। हाँ 8 भजन है, 8 भजन है इसमें। तो यही इसको हाँ ये काउंटर में मिलेगी सबको। যে সিডিটা উদ্ঘাটন হচ্ছে সেটি আপনারা কাউন্টারে পাবেন। মহারাজজি এবং পুণ্যময়ী মাতাজির হাতে উদ্ঘাটিত হচ্ছে। প্রত্যেকেই আপনারা আমাদের আজকের এই কাউন্টারে পাবেন। बोलिए सद्गुरु भगवान जी की जय, सद्गुरु भगवान जी की जय, सद्गुरु भगवान जी की जय, कृष्ण भगवान जी की जय, कृष्ण भगवान जी की जय, कृष्ण भगवान जी की जय। हर हर महादेव। आज हमारा शुभ जन्म और किशन जी का जन्म का एक ही साथ सबको मैं आशीर्वाद करता हूँ। सबको मेरा बहुत प्यार, सबका लिए मेरा कल्याण प्रार्थना करता हूँ। सबका जीवन में शांति और सुख मिले। अभी तो माता जी ने बहुत कुछ बोल दिया, तो हमने आप लोग को सुनाएंगे, सब बाद में सुनाएंगे। अभी जो आए हैं सब बोलने के लिए, तो वो लोग का थोड़ा समय देने के कारण हम थोड़ा बोल के ही छोड़ देता हूँ। जो हम लोग जन्म जिस जगह भी ले, कर्म ही मनुष्य का असली परिचय है। मनुष्य उसका कर्म का साथ दुनिया में भाई इस धरती में जहाँ भी रहते, कर्म ही उसके जीवन का प्रकाश करती है। वो छोटा से छोटा भी हो,
क्या बड़ा से बड़ा हो, कोई रास्ता छोटा भी नहीं है, कोई रास्ता बड़ा भी नहीं है। हम लोग का जो भी कर्म करने का समय सच्चाई होना जरूरी है। सच्चाई आदमी का सब चिंता और भय से मुक्त करती है। और सच्चा बिना इस संसार में कितना भी आदमी डिग्री प्राप्ति कर ले, कितना भी पावरफुल हो जाए, कितना भी वो धनशाली बन जाए, लेकिन उसको चिंता और भय से मुक्त नहीं हो सकते। चिंता और भय आदमी को एकमात्र मुक्त कर सकते है सच्चाई। और भगवान का जो हाथ में जो सुदर्शन चक्र था, वो सच्चाई का ज्ञान है जो सारी अज्ञान को नाश करती है। वो चक्र ऐसे नहीं, वो ज्ञान रूपी चक्र है। कर्म बिना कितना किताब पढ़ लो, कितना भी सुन लो, कितना भी देख लो, लेकिन कर्म बिना कभी भी ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती। अनुभव ही असली ज्ञान है। तो आपका जीवन में क्या अनुभव है? अनुभव नहीं है तो आप अज्ञान में पड़ा हुआ है। कर्म करते हुए जीवन का सुख दुख का, शांति अशांति का ज्ञान होता है। किस काम में शांति है, किस काम में अशांति है। तो हमने एक ही मात्र देखा है संसार में, जो शांति एकमात्र अपना सच्चाई में है। इस संसार में सम्राट अशोक जो इतना बलशाली था, इतना धनशाली था, इतना बुद्धिमान था, इतना कर्म योद्धा था, सारी उसको सामने शस्त्र का समाप्त कर दिया, लेकिन क्या नहीं मिला? शांति नहीं मिला। एक दिन सब छोड़ छाड़ के भगवान बुद्ध का पास किया, जो हम शांति चाहता हूँ। मंत्री बोलते हैं जो आप इतना वीरत्व, इतना आपका नाम, जस, ख्याति, धन आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपको सब कायर बोलेगा, आपको कोई स्वार्थपर बोलेगा, कोई कुछ नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं। आप राजन, आप सम्राट, ये छोड़ के मत जाइए। लेकिन सम्राट अशोक ने क्या बोला? ये सब करके हमने देख लिया, किसी में मेरे को शांति नहीं मिला। हमको चाहिए शांति। जब रात को हमने सोने जाते हैं, कितना आदमी का रोने का आवाज, कितना कितना चिल्ला रहे, कितना हाहाकार हो रहे, कितना आदमी का खून का बुदबू आ रहा है, कितना पुकार। ये लड़ाई जीत के हमको मन शांति नहीं मिला। तो जो लड़ाई में शांति है, तो झूठ का साथ सच्चाई का लड़ाई है। सच्चाई का रास्ता हमेशा बंद है, उसके साथ लड़ाई करके आगे बढ़ना है। और सच्चाई का साथ आप चलेंगे, जरूर आपको आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन जितना बढ़ पाएंगे आपका हृदय में ना चिंता रहेगा, ना भय रहेगा। चिंता भय से हमेशा आप मुक्त रहेंगे। यही एकमात्र भगवान का धर्म और अधर्म का एक ही बात है। धर्म क्या है? सच है। अधर्म क्या है? झूठ है। तो झूठ का साथ सच्चाई की लड़ाई। तो हम लोग का जिंदगी में सभी इस लड़ाई में लड़ रहा हूं। सभी अपने घर में बैठ के कर्म क्षेत्र में कहीं भी रहे,
ये दुनिया में हर आदमी झूठ बोलने का पहले एक बार सोचता है बोलूं कि नहीं बोलूं। सच बोलूंगा तो मेरे को ये तकलीफ होगा, झूठ बोलूंगा तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन जिसका मन जितना तमोगुण से ढका हुआ है, रजोगुण से ढका हुआ है, वो हमेशा झूठ का सहारा ले लेते हैं। लेकिन झूठ का सहारा ले तो बच जाते हैं, लेकिन उसका हृदय में हमेशा दहन रहते हैं, हमेशा कष्ट होता है। जब मैं झूठ बोल बोल के मन को कलुषित कर दिया, मन को चंचल हो गया, मेरा मन इतना अस्थिर है, मेरा मन इतना बेचैन है, जो मैं कहीं भी जाके बैठ के शांति नहीं ले पा रहा हूं। तो यही हमारा जीवन है, जो हमको अंदर ही सच को पकड़ो तो हमको सभी ठोकर मार के चला जाते हैं। सच अकेला सच चलते हैं, सच का साथ कोई नहीं देता है। सच जहाँ है वहाँ अकेला है, झूठ जहाँ है तो वहाँ हजारों है। तो इसलिए हमने गुरु जी हम लोग को बोलते हैं सच का साथ चलेगा तो ठोकर खाते खाते चलेगा, तेरा को ठोकर खाते रहेगा। हाँ, लेकिन सच तेरा को हमेशा बल देगा, तेरा को शांति देगा, तेरे को चिंता भय से मुक्त कराएगा। भगवान भी संसार में चलने के लिए अंतिम जुक्ति यही दिया, जो देख अगर इस संसार को नहीं छोड़ना है तो मेरा को सुमिरन कर और लड़ाई कर। इस लड़ाई में मेरा को नहीं छोड़ना। तो संसार में जाके तो झूठ और छल कपट से जब लड़ाई करेगा तो मेरा को तू छोड़ देते, ये नहीं छोड़ना है। मेरा को पकड़ के लड़ाई कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरण जुहुः। तू मेरा को पकड़ के लड़ाई कर। ये है भगवान क्या बोलते हैं, जो मेरा को पकड़ के जो लड़ाई करते हैं मैं उसका बल बुद्धि प्रदान करता हूँ, और जो मेरा को छोड़ के लड़ाई करते हैं मैं उसका बल बुद्धि को हरण कर लेता हूँ, और वो एक दिन विनाश हो जाते हैं। कितना भी बलशाली हो, कितना भी वो छल कपट वाला हो, सबका एक दिन विनाश होना पड़ता है। इसी कारण से हम लोग का जीवन का लड़ाई, जो झूठ का साथ सच का लड़ाई, और अधर्म का साथ धर्म का लड़ाई, और हम लोग का जीने के लिए इस संसार में आया है, यहाँ जीने के लिए नहीं, यहाँ मरने के लिए आया है। मरने के पहले ही हम लोग का जीवन कैसे होना चाहिए, मरने का पहले ही सच को साथ पकड़ के लड़ते हैं तो स्वर्ग को प्राप्ति होते हैं। अगर झूठ का साथ लड़ाई करते हैं तो हमेशा उसको नरक का वास होते हैं। इसलिए हमको चाहिए, जो हम लोग का जीवन यात्रा का जो लड़ाई चल रहा है, उस लड़ाई में जीतने के लिए एक ही उपाय है, श्री कृष्ण भगवान को अपना जीवन का सारथी बनाओ और उस रथ में बैठ के भगवान का सहारे में चलो। जिधर वो चलाते हैं बुद्धि उस तरफ चलो, और इस तरफ में सबसे हम लोग का जीवन का सबसे बड़ा शांति, जो शांति के लिए सम्राट अशोक अपना राजपाट छोड़ के भगवान बुद्ध का पास किया था, जो प्रभु मेरा को चाहिए शांति। तो इसी प्रकार हर आदमी यहाँ सब कुछ प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन शांति बाजार में खरीद के नहीं मिलता है, किताब पढ़ के शांति नहीं मिलता है, यहाँ अपना ढूंढ के शांति नहीं मिल सकते। अपना कर्म ही उसका एकमात्र शांति का जड़ है। शांति
पाने के लिए आपको चाहिए अपना सच्चाई का साथ कर्म करें और सच्चाई उसको शांति का मार्गदर्शन कराती है और शांति हम लोग का सब कुछ प्राप्ति कराती है। शांति में क्या है? एक लड़का मेरे को दिल्ली में पूछा, जय महाराज हम लोग शांति लेके क्या करेंगे? शांति शांति बोल रहे, हाँ? अरे शांति में है क्या? मुंह में शांति बोलने से क्या हमको मन में सब कष्ट मिट जाते हैं? अरे शांति का अर्थ ही नहीं जानते। शांति में परिपूर्णता होते हैं। जो परिपूर्ण शक्ति जिसमें है उसी में शांति है। तो परमात्मा में परिपूर्ण शक्ति है और वही परमात्मा सबका हृदय में निवास कर रहे हैं। जो हृदय में परमात्मा बोल रहे हैं मेरा साथ अपने को जोड़, तभी तेरा, जैसा बिजली का कनेक्शन हम अपने घर के साथ जुड़ देते हैं तो क्या होता है? बिजली का पूरा ताकत हमारा घर में आती है, हमारा अंधेरा दूर करके घर को प्रकाश करती है। इसी प्रकार हमारा जिंदगी जो परमात्मा का साथ जोड़ने से हमको ऐसी लाइट आती है जिस लाइट से हमको जिंदगी का हर अंधेरा दूर हो जाती है। हाँ? लेकिन हम तो परमात्मा से जोड़ने का कोशिश नहीं करता हूँ। हम लोग परमात्मा का छोड़ के क्या करता हूँ? इस संसार का वस्तु से जोड़ने का कोशिश करता हूँ, इस संसार का रिलेशन का साथ जोड़ने का कोशिश करता हूँ। लेकिन इस संसार का कोई भी रिलेशन यहाँ हमेशा नहीं रहेगा। रहने वाला कौन है? एकमात्र परमात्मा है जो हमेशा वो आपको साथ है। एक सेकंड के लिए भी आपको साथ नहीं छोड़ते। आप कहीं भी जाए, घर का आदमी को छोड़ते, सबको छोड़ते, लेकिन आप अपने अंदर जो आत्मा है वो आपका साथ निरंतर रहती है। तो इसी प्रकार परमात्मा आपका आत्मा है और वो आत्मा निरंतर आपको साथ रहती है। तो उसको साथ जोड़िए और उसको साथ जोड़ने से क्या होते हैं? आप कहीं भी संसार में आप कर्म क्षेत्र में कर्म कर रहे हैं, आपको वो बल और बुद्धि प्रदान करती है। बल बुद्धि प्रदान करते कोई भी कर्म आप कीजिए। इसलिए भगवान बोलते हैं ददामि बुद्धि जोगम, हम बुद्धि में बुद्धि प्रदान कर देता। ददामि दिव्य नेत्रम, हम उसको दिव्य ज्ञान नेत्र प्रदान करता हूँ जिससे वो ज्ञान और इसी बुद्धि से इस संसार को सब प्रकार बाधा को पार कर देती। तो शांति उस पूर्ण शक्ति में है और यहाँ हम लोग का सब अखंड शक्ति है, सब खंड खंड शक्ति है, जिस खंड शक्ति से हम लोग का मन कभी भरेगा ही नहीं। आज है अशांति है, कल अशांति है, और जिस घर में भरा हुआ है चीज, तो उस घर में हम लोग का गुरु जी बताता था, जो जल भरा हुआ है तो उसमें पत्थर डालो, पत्थर घुस जाएगा। रेत भरा हुआ है तो रेत में अपना सरिया घुसाओ तो वो घुस जाएगा। अगर उस घर में अपना ऐसे ही कोई वस्तु से भर दो जिसका अंदर कोई चीज का प्रवेश ना हो, तो घर का बाहर ही सब गिर जाएगा, अंदर प्रवेश नहीं हो सकते। इसी प्रकार हमारा विश्वास उस प्रकार है, विश्वास रूपी घड़ा इतना बलिष्ठ है जो विश्वास ही धर्म मूलम, विश्वास ही धर्म का मूल है। कहीं भी कर्म करने जाओ तो इतना विश्वास होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में आपका विश्वास ना खो जाए, ना डलमला जाए। आपका विश्वास हमेशा बलिष्ठ होना चाहिए। जो दुर्बल विश्वास वाला है वो इस संसार में उसको ना सुख मिलता है ना परलोक में सुख मिलता है। तो कर्म करने का समय आपका विश्वास ही सबसे बड़ा बल है, और उसी को आप अंदर रखिए। जो विश्वास आपको कोई भी चीज अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, और विश्वास कमजोर हो गया तो हर चीज उसके अंदर प्रवेश हो जाती। जैसा हमारा शरीर में ताकत है,
कोई बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया अंदर नहीं आ सकते, लेकिन अगर शरीर कमज़ोर है तो हर बैक्टीरिया अंदर घुस जाएगा। तो इस कारण से हम लोग का शरीर जब कमज़ोर होता है तभी बैक्टीरिया उसका डेवलप होते हैं। हाँ, तो इसीलिए जो मजबूत शरीर, मजबूत जिसका विश्वास, उसका अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर पाते। इसी प्रकार पात्र बनिए जिस पात्र में कभी भी कोई भी संशय, कोई भी द्वंद, कोई भी झूठा उसका अंदर प्रवेश न कर पाए। इसीलिए बोलते हैं विश्वास ही धर्म मूलम, विश्वास ही धर्म का मूल है। तभी हमारा यही जन्मदिन का उपलक्ष्य हुए सब लोग को यही बताता हूँ, जो अब घर में भी आप एक नौकर रखिएगा तो उसको भी आप पहले विश्वास का परीक्षा लेते हैं, यह आदमी अच्छा है न बुरा है। हाँ? अगर अच्छा है तो आप धीरे धीरे उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देते। अगर वो आदमी सच्चाई है, हाँ, अगर विश्वासी है तो आप सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देते। अगर आपको ऊपर इसके ऊपर डाउट है तो फिर आप क्या करते, सावधान से रहते। तो इसी प्रकार आप भी घर में कोई भी आदमी को रखते हैं तो पहले उसको विश्वास का परीक्षा लेती है, जो देखता है ये आदमी कैसे विश्वासी है कि नहीं है। तो इसी प्रकार भगवान भी देखते हैं ये भक्त लोग का विश्वास कैसे है, ये डामाडोल है ना, इसका अंदर कोई ताकत है। तो इस कारण से हम भी चाहते हैं जो आप लोग का विश्वास इतना अटूट बने भगवान का भक्ति में, भगवान के ऊपर विश्वास में, तो अब फिर आपको कहीं भी पीछे घूम के देखना नहीं पड़ेगा। जैसे हम सारी भारत में घूमते हुए यही विश्वास का साथ हमने देखा है जो सब आदमी यही चीज़ पसंद करते हैं और यही चीज़ का ऊपर सारा दुनिया आज खड़ा है। इस कारण से हम लोग आज आप लोग का यही आशीर्वाद करता हूँ जो आप लोग का विश्वास बहुत मजबूत हो, जिससे आपको कभी भी आपको दुख का, कष्ट का, अशांति का देखना ना पड़े। ये बोल के हम अपना समाप्त करते हूँ। हरि ओम। भले कृष्ण भगवान की जय।